وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، کوشش ہوگی کہ سفارت خانے میں قیام کریں اور 7 کم لوگ لے کر جائیں۔ امریکہ جا رہا ہوں، کوشش ہوگی میں امریکہ میں پاکستان ایمبیسی میں ٹھہروں گا، ہوٹل میں نہ ٹھہریں، تھوڑے سے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور جو پہلے خرچے ہوتے تھے ٹرپس کے، ساری کوشش یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں، آمدنی بڑھائیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ پر بیان جاری کر دیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان کا 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس آنے پر خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں پاک امریکہ تعاون کی مزید مضبوطی توجہ کا مرکز ہوگی۔ پاک امریکہ تعاون کا مقصد خطے میں امن و استحکام اور معاشی خوشحالی لانا ہے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان انسدادی دہشت گردی، دفاع، توانائی اور تجارت پر بات ہوگی۔ بات چیت کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن اور پاک امریکہ دیر پا شراکت داری کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے کی باتیں کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ان کی کرپشن کی معلومات روزانہ کی بنیاد پر حکومت کو مل رہی ہیں۔ کہا کہ پہلے دن سے انہوں نے ملک میں افراتفری اس لیے مچائی ہے کہ میں 3 حرف یعنی NRO کہہ دوں۔ اور اب ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت اب پرانے طریقہ کار کے مطابق نہیں چلائی جا سکتی۔ معاشی عمل کو تیز کرنے کے لیے تاجر اور صنعت کار حکومت کی مدد کریں۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر ہاؤس کراچی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے کراچی آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاجروں کے مسائل حل کیے جائیں۔ حکومت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح غربت کا خاتمہ اور معاشی عمل کو تیز کرنا ہے، جس میں تاجروں کی مدد چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1 سال میں جو ٹیکس جمع ہوا اس میں سے آدھا ٹیکس سود میں گیا، دیگر ملکوں میں صنعتیں بڑھیں، ہمارے ملک میں نیچے چلی گئیں۔ ہمارا پلان بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کٹ پتلی کا حق نہیں کہ وہ سکھر کے نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف رائے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے صوبے کے عوام کو انتقام کا نشانہ بنائیں۔ سکھر میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں پیش آئے افسوسناک واقعے کا ذکر۔ کراچی میں ٹی وی اینکر مرید عباس کے قتل کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 20 کروڑ روپے کے لین دین کا معاملہ دوہرے قتل کی وجہ بنا۔ قتل کے مرکزی ملزم عاطف زمان کا ٹائرز کا بزنس تھا۔ اس نے کئی افراد کو بھاری منافع کا لالچ دے کر کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کروا رکھی تھی۔ سمگل شدہ ٹائروں کی کھیپ پکڑی جانے پر 3 ماہ سے منافع بند تھا۔ ملزم نے پیسہ واپس مانگنے والوں کو دفتر بلا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مرید عباس اور خضر سمیت 2 افراد مارے گئے، جبکہ عمر ریحان نامی انویسٹر فرار ہو گیا۔ اسپتال میں زیر علاج ملزم عاطف کو ہوش آ گیا ہے اور پولیس نے اس کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے کیس میں مریم نواز کو طلبی کا سمن جاتی عمرہ میں وصول کرا دیا ہے۔ نیب کی خصوصی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ جاتی عمرہ جا کر نوٹس کی وصولی کرائی۔ سمن مریم نواز کو 19 جولائی کو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس G11 اسلام آباد ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔
दूसरी जानिब नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि ये उन्हें हर कीमत पर गिरफ्तार या नज़रबंद करना चाहते हैं। मसला ये है कि गिरफ्तार करने वालों के पास उनके खिलाफ कुछ है नहीं। बेचारों को वो झूठा केस दोबारा खोलना पड़ा जिसमें उन्हें सजा हुई और अदालत वो सजा भी मुअत्तल कर चुकी। मरीम नवाज ने कहा कि ये इकदाम गैर कानूनी और मज़ाक़ा खेज है, इसलिए चलेगा नहीं। वो अदालत के रूबरू पेश न होकर गिरफ्तारी प्लेट में रखकर इनका मकसद पूरा होने नहीं देना चाहती, न ही वो चाहती हैं कि अदालत में नाकाबिले तरदीद हकायक सामने रखने का मौका गंवाएं। मरीम नवाज ने कहा कि वो सिलेक्टेड की आलाकार नैब की सियाहकारियों को सामने लाने का मौका गंवाना नहीं चाहती। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी और मरीम नवाज का टेलीफोनिक राबिता हुआ है जिसमें चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर बातचीत की गई है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सती से। वकार, क्या गुफ्तगू हुई है दोनों रहनुमाओं में? देखिए, दोनों रहनुमाओं ने इसके ऊपर मुशावरत की है कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होना चाहिए और इसके ऊपर जो हिकमत अमली है उस पर भी मुशावरत की गई है। अब कल सुबह जहां इस्लामाबाद में रहबर कमेटी जो 9 अपोजिशन जमातों के पर मुश्तमिल 11 अरकान है वो दोबारा यहाँ पे उनका इजलास हो रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि दोनों बड़े रहनुमाओं ने जिस नाम पर इत्तफाक किया उसका ऐलान भी मुतवक्को है कल इनके इजलास में और 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर यही बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया वकार सती। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने सिंध बैंक के सदर तारिक अहसन और इसी बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सैयद नदीम अल्ताफ और डायरेक्टर बिलाल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। तारिक अहसन और नदीम अल्ताफ की गिरफ्तारी कराची, जबकि बिलाल शेख की गिरफ्तारी रावलपिंडी से अमल में लाई गई। तीनों मुलजिमान को एहतसाब अदालत कराची में पेश किया जाएगा। और यहाँ एक अहम वजाहत, जियो न्यूज़ ने कुछ देर पहले नैब की गिरफ्तारियों की ब्रेकिंग न्यूज़ में बिलाल शेख को सदर समिट बैंक लिखा और कहा था इदारा इस गलती पर माजरत खा है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब अपने काम अदालत से क्यों कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी हुकूमत है, अपने काम खुद करें। कहा कि पहले भी कहा था कि अदालत नैब के काम नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर इनकम टैक्स लाहौर की बर्रियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। नैब अपने काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराता है? आपकी अपनी हुकूमत है, अपने काम खुद करें। अदालत ने पहले भी कह दिया था कि अदालत आपके काम नहीं आएगी। ये सब कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एडिशनल कलेक्टर टैक्स लाहौर मोहम्मद इकबाल अहमद की बरियत के खिलाफ नैब की अपील के समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मोहम्मद इकबाल अहमद ने 8 गैर कानूनी जायदादें खरीदी, उन बेनामी जायदादों को मुलजिम ने आगे फरोख्त कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम साबित करना तो आपका काम है। अगर मालिक और बेनामीदार खुद कह रहे हैं कि जायदाद उनकी नहीं, तो आपके पास क्या सबूत है? आपकी गलती है कि 342 के तहत दुरुस्त सवालात अदालत में पेश नहीं किए। अदालत ने नैब की अपील ये कहकर मुस्तरद कर दी कि इस्तगासा इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम के खिलाफ कोई और मुकदमा है तो नैब अपनी तहकीकात जारी रखे। ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद इकबाल अहमद को 2006 में 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। ताहम हाई कोर्ट ने मुलजिम को बरी कर दिया था। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ कावान का कहना है कि साबिक़ हुक्मरान कौम के माल पर बादशाह बने फिरते थे, आज इस लूट मार को बेशर्मी से इस्तेहक़ाक़ करार देते हैं। उन्होंने कहा कि हिसाब किताब की बारी आई तो रोना धोना ख़त्म नहीं हो रहा, अब रोए ना, हिसाब दिए बगैर जान छूटने वाली नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि गरीबों के माल पर सैर सपाटे का यौम हिसाब आन पहुंचा। अपनी चवन्नी ना खर्च करने वालों ने कौम के सरमाए से करोड़ों रुपए की टिप दे दी। जबकि रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्की मईशत तबाह हो चुकी है, लेकिन ये लोग सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़ीर सेहत 2 से 3 अरब रुपए खाकर फरार हो गया, लेकिन किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। इंसाफ का निज़ाम फेल हो चुका है, जो करप्शन खत्म हो चुकी थी वो वापस आ रही है। आज क्या वजह है कि 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई 3 गुना हो गई? ये मुल्क की बदनसीबी है। जब हमने कहा कि वोट को इज्जत दो तो हमने ये नहीं कहा कि वोट हमें दो, वोट जिसको मर्जी दो, लेकिन जो हुकूमत बने पाकिस्तान के अवाम की राय से बने। बस वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्टेड है,
लेकिन लोग इसको देख रहे हैं मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर आज़म मोहम्मद, तो जोर से बताएं, आवाज जाए, मोहम्मद। और अवाम का नारा क्या है? गो नियाजी। और अब आपको खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इंडोनेशिया के सफीर वान सोयो दहाई ने मुलाकात की है, जिसमें पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक इंडोनेशिया दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मजहबी, तारीख़ी और सकाफ़ती रवाबित हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब के तफ्तीशी अफसर नादिर अब्बास ने एहतसाब अदालत में बयान कलमबंद करा दिया है। केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। वकील सफाई आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करेंगे। और अब आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान को कर्जे की पहली किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान को पहली किस्त 99 करोड़ 10 लाख डॉलर की मिली है। IMF की जानिब से किस्त मिलने के सबब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 4 करोड़ 31 लाख डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के पास 8 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में कई दीगर इस्लामी ममालिक के मुकाबले में हकीकी जमहूरियत मौजूद है। पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी खासी है। कौमी असम्बली में 68 जबकि सेनेट में 18 मुंतखब ख़वातीन मौजूद हैं। बरतानिया में दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि 20 करोड़ से ज़ायद अफराद की मार्केट के साथ पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत है, जिसमें 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 2018 के इंतखाबात को यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका के मॉनिटर्स ने आज़ादाना और शफाफ करार दिया। हमारे यहाँ ख़वातीन की इफ़्फ़त व नामूस की हिफाजत के लिए मौसर क़वानीन मौजूद हैं। अक़लियतों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए 5% ख़ुसूसी कोटा मुख्तस किया हुआ है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर उनकी अहलिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। नबीला सनाउल्लाह ने अपने वकला की मुशावरत से अक़वाम मुत्तहिदा के ड्रग एंड क्राइम ऑफिस को इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के ज़रिए ख़त भिजवा दिया। नबीला सनाउल्लाह का कहना था कि उनके खावंद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ख़त में उन्होंने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन ऑन नारकोटिक्स एंड ड्रग्स राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तहक़ीक़ात करे। ख़त में लिखा गया है कि राना सना की गाड़ी में मौजूद 4 मोबाइल फ़ोन, आईपैड, पर्स और 60,000 रुपए भी वापस नहीं किए गए। और अभी खबर शामिल करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से, जिसके ज़िला गज़र में गर्मी में इजाफे के साथ ही ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। दरियाओं में तुग़यानी के बायस नगर की वादी हस्पर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है और 2000 अफराद एक हफ्ते से महसूर हैं। उधर चित्राल में सैलाब से मुतासर सड़कों और पुलों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। वादी गोलैन के लिए पैदल अफराद की आमदरफ्त बहाल कर दी गई है। गर्मी के बायस गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने के बाद नालों और दरियाओं में तुग़यानी पैदा हो गई है। दरियाए नगर में तुग़यानी से हस्पर रोड 3 मकामात पर मुतासर है और वादी हस्पर में रहने वाले 2000 अफराद एक हफ्ते से महसूर हैं। दरियाई कटाव से गज़र रोड को कई मकामात पर नुकसान पहुंचा है और कई राब्ता पुल बह गए हैं। उधर चित्राल की वादी गोलैन गोल में सैलाब से मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। भारी मशीनरी से मिट्टी और पत्थर डालकर कटाव को भरा जा रहा है। वादी गोलैन के लिए पैदल जाने वालों के लिए आर्जी रास्ता बना दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों ग्लेशियर फटने से वादी गोलैन के 2 देहात ज़ेरे आब आ गए थे। सड़कों, पुलों और फसलों को नुकसान पहुंचा था। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर 150 से ज़ायद फैक्ट्रियां और कारखाने 10वें रोज भी बंद रहे। पावर लूम्स फैक्ट्रियां बंद होने से रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिस पर मजदूरों ने चौक घंटा घर पर एहतजाज किया।
फैसल आबाद के बाद रुख करेंगे मुल्तान का, जहां ताजरों ने FBR की जानिब से लगाए गए टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। चौक नवा शहर से FBR के ऑफिस तक रैली निकाली। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ताजरों के खिलाफ लगाए जाने वाले टैक्सेस के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने FBR ऑफिस के बाहर पहुंचकर नारे लगाए। बौहर चौक पर भी ताजरों ने हुकूमत और FBR के खिलाफ नारे लगाए। कराची में जा बजा कचरे के ढेर लगे हैं। ओल्ड सिटी एरिया शू मार्केट बादामी स्ट्रीट में सेवरेज का पानी पीने के पानी की लाइन में शामिल हो गया है, जिससे इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। तफसीलात बता रही हैं कशमाला नजीब। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब कचराची बन गया है। जिस इलाके में निकल जाएं कचरे के ढेर नजर आते हैं। लियाकताबाद, गोलीमार, नाजमाबाद, मलीर, खोखरापार, सऊदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, गर्ज कोई इलाका ऐसा नहीं जो गंदगी से पाक हो। दूसरी जानिब शू मार्केट बादामी स्ट्रीट के मकीन 2 हफ्तों से शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। सेवरेज की लाइन पीने के साफ पानी में शामिल हो गई है, जिसके बायस घरों में गटर का पानी आ रहा है। ये सारा गटर की लाइन अंदर डैमेज है सारी, और पाइप लाइन पीने का पानी भी साथ जा रहा है, वहाँ से गटर भरता है और पानी में जाके शामिल हो जाता है। गंदा पानी है, बदबू वाला है, ना पी सकते हैं ना पका सकते हैं। अब गरीब आदमी पानी खरीदेगा, खाने के लिए खरीदेगा। इस्लामपुरा मस्जिद के अंदर भी गटर का पानी मिला हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल भी उसमें वजू नहीं कर सकते आप। इलाके की 3 मसाजिद में भी सीवरेज का पानी आ रहा है। नमाजी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि घरों का निज़ाम दरहम बरहम होने पर ख़वातीन भी परेशान हैं और बच्चे जल्दी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इलाके का कौंसलर भी चंदा जमा करके लाइन ठीक करवाने की डिमांड कर रहा है, जबकि मेयर कराची इख्तियारात और फंड्स की कमी का रोना रो रहे हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची। कस्टम्स हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर नाइजीरियन बाशिंदे के कब्जे से 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली। मुलजिम गैर मुल्की प्रवास से नाइजीरिया से बरास्ता दुबई कराची पहुंचा। मनशियात बैग के खुफिया खानों में छुपाई गई। लाहौर में सरकारी स्कूलों के सीनियर असातिज़ा ने कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने के मुतालबे के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया। शरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर महकमा तालीम के खिलाफ नारे भी लगाए। असातिज़ा ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हश्त नगरी के मकाम पर पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए अंडरपास में बनी हजाम की दुकान ख़त्म करा दी है। सोशल मीडिया पर हजाम की लोगों के बाल तराशने, शेव बनाने की वीडियो वायरल हुई, जिस पर कार्रवाई की गई। PDA के मुताबिक हेयर ड्रेसर की दुकान तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती है, इसलिए उसे हटाया गया। BRT कंसल्टेंट ने एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से उठाए गए 32 एतराज़ात दूर करने से मुतालिक रिपोर्ट पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 मुख्तलिफ मकामात पर बसों के गुजरने के रास्ते को कुशादा और टिकट बूथ का डिज़ाइन बेहतर कर दिया गया है। पेशावर से देखिए शीबा हैदर की रिपोर्ट। एशियाई तरक्की बैंक ने अपनी रिपोर्ट में BRT के तामीराती काम पर बास एतराज़ात किए थे। इस हवाले से BRT कंसल्टेंट ने रिपोर्ट तैयार करके पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT पर एशियाई तरक्याती बैंक के बेशतर एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेशन पर मौजूद साइन बोर्ड ADP के मंजूरशुदा डिजाइन और तमाम स्टेशन पर लगाई गई टाइल्स ADP की हिदायत के ऐन मुताबिक है, जबकि मजीद एतराज़ात दूर करने पर काम जारी है। इसी तरह चमकनी डिपो के करीब फास्ट चार्जर पर काम जारी है, जबकि 4 मकामात पर बस के गुजरने के रास्ते को कुशादा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकट बूथ का डिजाइन भी बेहतर बना दिया गया है, जबकि स्टेशन हमले के लिए वॉशरूम्स भी बनाए जा रहे हैं। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके डिफेंस में खयाबानी बुखारी में पर एंकर पर्सन समेत 2 अफराद के कत्ल के मामले से जुड़ी कुछ और तफसीलात सामने आई हैं। वाक़े के ऐनी गवाह उमर रेहान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या बताया है उमर रेहान ने इस मुतालिक? जी देखिए, हमारी उमर रेहान से खुसूसी बात हुई है तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो CCTV फुटेज मंजिल आम पर आई है जिसमें वो शख्स जो गिर रहा है वो उमर रेहान ही है। उमर रेहान जो एंकर पर्सन है उनके साथ
होटल पर बैठे थे कि जब ये आतिफ अवान का जो है फोन आया है, फोन आने पर ये वहाँ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद ये आतिफ अवान से पहले आतिफ ज़मान की बात कर रहे हैं आप काशिफ? जी 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 बिल्कुल, आतिफ ज़मान से पहले वहाँ पहुंचे हैं। आतिफ ज़मान ने वहाँ पहुंचने के बाद फायरिंग की है। उमर रियान ने हमें ये भी बताया है कि वो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसके 7 करोड़ रुपए इस बिजनेस में थे। 3 माह बाद 1 करोड़ का मुनाफा दिया जाता था। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस इस पूरे इसमें इन्वॉल्व थे। ताहम अब से कुछ देर कबल उमर रियान ने जो अपना बयान पुलिस को भी रिकॉर्ड करवा दिया गया है। ताहम अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से और दीगर शवाहिद की मदद से एक बार फिर से अगर आप हमें बता सके, 7 करोड़ जमा कराने पर आप बता रहे हैं कि हर माह 1 करोड़ का मुनाफा मिलता था उनको, यही बताया गया आपको? जी, हमारी उमर रियान से जब बात हुई तो उनकी जानिब से यही बताया गया है कि 7 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाते थे और उस पर जो है इसे 3 माह बाद जो है वो 1 करोड़ का मुनाफा दिया जाता था। इसी तरह डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो रखी गई थी। जैसे कोई 1 लाख रुपए देता था तो उससे 20% दिए जाते थे। मतलब 1 लाख पर जो है वो 20,000 रुपए जो थे वो मुनाफा दिया जाता था। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो उमर रिहान है ये शायद बिजनेस में इन्वॉल्व भी थे टायरों के, तो क्या कहना उनका? ये जो पैसे लिए जाते थे टायर के बिजनेस में लगाए जाते थे या ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का कोई स्कैम था? जी, हमारी उमर रियान से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो डायरेक्ट जो है वो आतिफ ज़मान से रास्ते में नहीं था। जब इनिशियल उसने अपनी अमाउंट दी थी तो पहले 1 करोड़ पे तकरीबन दिए थे और उसके बाद ऐसे करते करते जब उसका डायरेक्ट आतिफ ज़मान से रास्ता हुआ था तो आतिफ ज़मान ने उससे 7 करोड़ पे लिया और यही बता कर लिया कि उसने जो है वो टायर का एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है और उस बिजनेस में जो है वो ये रकम पहुंच सकता है। काशिफ ये भी बताएगा, क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया, तो उन्होंने इस वाकये से मुतालिक कुछ बताया कि उस वक्त क्या सूरत हाल बनी थी? देखिए, हमारी जब बात हुई तो इनकी जानिब से बताया गया है कि ये एक होटल पर बैठे थे और जब ये वहाँ पहुंचे हैं तो उसके तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद ये उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए थे। तो जैसे ही वो दाखिल हुआ उसने पिस्टल लोड किया। लोड करने के बाद जो है वो इस पर फायरिंग की है। हम अब से कुछ देर कबल जो हमारी इनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो बयान है वो पुलिस हुकाम को रिकॉर्ड करवा दिया है सीसीटीवी फुटेज की मदद से। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।